So hello students, this is Dvit and this is my first lecture video on how to solve ISC specimen paper 2023. We all know that the exam is very much near, round about आपको February में exam start हो जाएगा and mathematics is one of the specimen paper जब मैंने देखा था it was slight tricky. Okay, it was not like previous year जैसा नहीं था कि previous year में direct question was asked. Now here there are some kind of tricky questions but not difficult. Again I am telling difficult कोई भी question नहीं है, just थोड़ा सा tricky है. You have to understand the questions very properly and once you understand the question then you can solve it very quickly also. So let us see the solution of the first part, that is one marker. Now first of all one tip is there, whenever you are doing a one marker question just take care के maximum you should take 2 minutes only. क्योंकि हम लोग अगर पेपर को क्लियरली देखें तो फर्स्ट 15 इन सेक्शन ए विल बी अ वन मार्कर क्वेश्चन. सो इफ यू गिव 2 minutes to each then 30 minutes and 5 questions will be in either section B or C. so वो भी वन मार्कर क्वेश्चन है तो उसको अगर आप 2 मिनट दोगे तो देन इट विल बी राउंड अबाउट 10 मिनट्स. सो टोटली 40 मिनट्स में आपका पूरा वन मार्कर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा. मैक्सिमम टाइम आई एम टेलिंग यू, उससे लोएस्ट भी हो सकता है. इट कैन बी डन इन 30 मिनट्स ऑल्सो सो दैट यू कैन गिव द मैक्सिमम टाइम टू द 2 marker, 4 marker and even 6 marker question. So we'll do step by step. First we'll complete the 1 marker question. तो अगर हम देखेंगे सेक्शन ए में, so we have MCQs. Okay, so very easy MCQs is there, very clear MCQs, you can do it very much easily, there is no need to worry about it. The first MCQ which was given in the specimen question paper is which of the following is not an equivalence relation on Z. Z means हम लोग को पता है कि Z means is a integer. ओके ना, और कौन इसमें से इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, दैट मींस नो दिस ऑप्शंस आर गिवन एंड दे आर नॉट अ इक्विवेलेंस रिलेशन. नाउ इफ यू सी वेरी मच केयरफुली द फर्स्ट ऑप्शन दे हैव गिवन a plus b is even. Now see, equivalence relation means what? कि it should be reflexive, symmetry or transitivity. Reflexive means what? कि a should be related to a. So suppose a and a should be related, तो a plus a अब ले लो तो 2a, वो reflexive हो जाएगा. If a plus b is even, b plus a is also even, वो symmetric हो जाएगा. If a plus b is even, b plus c is even, then a plus c is also even, वो transitivity हो जाएगा. So it is a equivalence relation. So अगर आप all the options देखोगे उसमें से मेरे को एक ही option है जो doubtful लगता है कि a is less than b. Okay. Now if आप reflexive देखोगे, reflexive का meaning क्या है कि a should be related to a, करेक्ट ना? So that means a should be less than a in a integer. Will it be possible? No. So this relation a less than b is not a इक्विवेलेंस रिलेशन. क्यों? क्योंकि वो ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव ही नहीं है, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव. ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज सी. ओके, फर्स्ट का है सी. नाउ इफ वी सी द सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लेट अस सी. सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लेट ए बी द सेट ऑफ द 50 कार्ड नंबर्स मार्किंग फ्रॉम 1 to 50. सो दैट मींस एक सेट है उसमें 1 to 50 नंबर्स का कार्ड है. Okay, there is a card of 1 to 50 and f is running from a to n. That means उसका डोमेन a है और उसका कोडोमेन एक नेचुरल नंबर है. नेचुरल नंबर में तो so many numbers हो गए, 1 2 3 like that till infinite. Okay, so many numbers हो गए. Okay, so now the question is कि if f of x is equal to the card in the number x only. अगर f of x, for example अगर मैंने फर्स्ट कार्ड निकाला तो मेरे को फर्स्ट आंसर ही आएगा. मैंने सेकंड कार्ड निकाला तो मुझे सेकंड आंसर आएगा. इफ आई टेक द थर्ड कार्ड आई विल गेट द थर्ड आंसर. सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन. अगर आप देखोगे मैं फर्स्ट कार्ड निकालूंगा तो मुझे फर्स्ट ही मिलेगा, मैं सेकंड कार्ड निकालूंगा मुझे सेकंड नंबर ही मिलेगा अकॉर्डिंग टू द फंक्शन व्हाट दे हैव गिवन. मैं थर्ड कार्ड निकालूंगा मैं थर्ड, लाइक दैट मैं 50 कार्ड निकालूंगा तो मुझे 50 ही मिलेगा, करेक्ट ना? बट सो मेनी नंबर्स आर देयर इन कोडोमेन. कोडोमेन में सो मेनी नंबर्स है जो आंसर्स अवेलेबल है बट क्वेश्चंस नहीं है अपने पास. There are answers available. 51 you can say in codomain there are many numbers 51, 52, 53 till up to n. तो 1 to 1 relation है. But on to when it is possible, when we can say on to के all the codomain is equal to range. That means all the codomain answers are used. Correct ना? Codomain के सभी आंसर used होने चाहिए. कुछ भी आंसर्स there should be no the answer should be not left out. Okay, so therefore this is not a on to relation. So हम लोग क्या बोलेंगे, f is 1 1 but not on to. तो कौन सा बचा हुआ, this option is 1 1 but not on to, that is option A. तो सेकंड एमसीक्यू का ऑप्शन हुआ A. ओके, थर्ड एमसीक्यू गिवन है. सो वेरी क्विकली हम लोग को सॉल्व करना है विद इन 2 मिनट्स. इट इज मोर देन इनफ टाइम, 2 मिनट्स में हो ही जाएगा. सो नेक्स्ट थर्ड एमसीक्यू है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स ऑफ -2. नाउ प्लीज हम लोग को यहाँ पे एक ट्रिक रिमेंबर करना चाहिए, दैट विल बी इजी फॉर अस टू सॉल्व द क्वेश्चन. जब भी sec इनवर्स
कॉस इनवर्स या कॉट इनवर्स, इसमें कुछ नेगेटिव्स आ जाए, ओके, सब लोगों को क्या करना है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स करना है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स करना है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स करना है। अगर इसका चाहे तो मैं डिटेल से एक वीडियो बनाऊंगा कि व्हाट इज नेसेसरी, बट राइट नाउ यू जस्ट रिमेंबर, अगर साइन इनवर्स में आया, कॉसेक इनवर्स में आया और टेन इनवर्स में आया, तो इसमें आपको नेगेटिव निकाल देने हैं, माइनस साइन इनवर्स माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स, तो ये आपको याद करना है। ओके, सो चलो एक क्वेश्चन में आता है, तो इट इज टेन इनवर्स रूट 3 एंड हियर मैंने आपको बोला ही है, तो हाउ टू राइट डाउन सेक इनवर्स ऑफ -2, हाउ टू राइट डाउन, जस्ट लुक ओवर द सेक इनवर्स ऑफ -x, इट इज पाई माइनस सेक इनवर्स रूट 2, करेक्ट ना, वो ब्रैकेट में लिखा क्योंकि आउटसाइड देयर इज अ नेगेटिव साइन। नाउ जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, tan इनवर्स रूट 3, जस्ट थिंक व्हेन tan कैन बी रूट 3, tan का वैल्यू कब रूट 3 होगा, सो इट विल बी ऑब्वियसली इन योर माइंड इट इज कमिंग 60 डिग्री, दैट इज पाई बाय 3 माइनस पाई माइनस सेक कैन बी 2, सॉरी नॉट रूट 2, सेक कब 2 होगा, तो थिंक लाइक दैट ना, लॉजिकली अगर आप आपका 10 स्टैंडर्ड आप रिवाइज करोगे तो cos 1/2 कब होगा 60 डिग्री में, तो sec 2 कब होगा, वो भी 60 डिग्री में होगा क्योंकि वो रेसिप्रोकल है, 60 डिग्री मींस पाई बाय 3। नाउ इफ आई ओपन अप द ब्रैकेट, पाई बाय 3 माइनस पाई प्लस पाई बाय 3, ये तो हम लोग इजीली ऐड कर लेंगे, पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 क्या होगा, 2 पाई बाय 3 माइनस पाई, अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो इसका आंसर आएगा माइनस पाई बाय 3। व्हाट इज आंसर ऑफ दिस, माइनस पाई बाय 3, दैट इज ऑप्शन सी, थर्ड एमसीक्यू का ऑप्शन सी होगा। सो वेरी क्विकली सॉल्व करना है, देयर इज नो नीड टू वरी, यू विल गेट आंसर ऑटोमेटिकली। ओके, चलो फोर्थ एमसीक्यू में जाते हैं। मैट्रिक्स A is given as 1 B 0 1, then our aim is what is A raised to n, A raised to n क्या होगा, now A raised to n, अगर आप सोचोगे A raised to n, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर आप देखें ना A raised to n, A raised to n means what, के आप मल्टीप्लाई कर रहे हो A को, ओके ना, कितने टाइम्स, n टाइम्स यू आर मल्टीप्लाइंग A, हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, बट चलो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशन तो बना ले हम लोग, तो A raised to 1 वी नो, A स्क्वायर, हम लोग A स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, A into A, what is A into A, 1b01 into 1b01, let us multiply, so first row into first column, आपको multiplication तो पता है, 1 into 1 plus b into 0, that is 1, first row into second column, 1 into b plus b into b, that will be 2b, this into this, 0 into 1 plus 0, that is 0, and first last row into last column, 0 into 1 1, तो ये आंसर हुआ A स्क्वायर का। चलो A क्यूब फाइंड कर लेते हैं और एक फाइंड कर लेते हैं, A क्यूब मींस व्हाट, A स्क्वायर इनटू A स्क्वायर का आंसर हम लोग ने अभी फाइंड किया है 1 2b 0 1, और A का आंसर क्या है 1b 0 1, करेक्ट ना, लेट अस मल्टीप्लाई फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, क्या आंसर होगा 1 plus 0 that is 1, first into this 1 into b is b plus 2b that is 3b, okay, 0 into 1 is 0 plus 0 that is 0, और 0 into b 0 plus 1, so 1, तो ये आंसर हो गया A क्यूब का। ना अब देखो A स्क्वायर का आंसर देखो बच्चों, व्हाट इज A स्क्वायर आंसर, 1 2b 1 0, अब A क्यूब का आंसर देखो 1 3b 0 1, आपको कुछ रिलेशन पता चल रहा है कि इफ A स्क्वायर इज देयर, वहां पे सिर्फ 2b हो रहा है, A क्यूब है तो वहां से सिर्फ 3b हो रहा है, तो A रेज़ टू 4 का क्या होगा 1 4b 1 0, वेरी गुड, तो A रेज़ टू n का क्या होगा, व्हाट इज A रेज़ टू n, ओके इट इज 1 nb 0 1, दिस विल बी द आंसर ऑफ दैट एमसीक्यू, दैट इज ऑप्शन A, उसका क्या होगा आंसर, ऑप्शन A। सो विद इन 2 मिनट्स आपको सॉल्व करना है, इट इज वेरी सिंपल एंड बेसिक क्वेश्चन। चलो विल गो फॉर द नेक्स्ट एमसीक्यू। अगर एक 3/3 मैट्रिक्स है, अगर A फिफ्थ क्वेश्चन A 3/3 मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स आल्सो इन सच अ वे दैट दे वो एक कंडीशन गिवन है, दैट इज अ कंडीशन गिवन टू अस कि A into adjoint of A is equal to 3 0 0 0 3 0 0 0 3, अगर एक कंडीशन गिवन हुआ है कि A into adjoint of A is this, then we have to find out the modulus of A transpose, okay, modulus means determinant, in matrices we call it as determinant, not modulus, determinant, तो हम लोग को determinant of A transpose we have to find out, but we have to remember some concept of matrices, okay, matrices का some concept है, you please remember, अगर आपको चाहिए तो मैं अब सारे formulas भी share कर दूंगा। So what is the formula of A into adjoint of A? There is one formula that you have to remember, it is determinant of A into matrix I, determinant of A into matrix I। now अगर आप ये देखोगे आंसर जो उन लोग ने दिया है उसमें से 3 तो मैं इजीली कॉमन निकाल सकता हूँ, करेक्ट ना,
3 तो मैं इजीली कॉमन निकाल सकता हूँ, सो इट विल बी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 3 तो मैंने इजीली कॉमन निकाल लिया। ये तो क्या हुआ, i हो गया, दिस विल बी i, सो व्हाट इट बी 3 into i। और इसमें क्या लिखा है कि a into h1 day क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ a into i। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो डिटरमिनेंट ऑफ a क्या बोलोगे आप सर, डिटरमिनेंट ऑफ a तो 3 हुआ, बट हम लोग को सर डिटरमिनेंट ऑफ a ट्रांसपोज ढूंढना है, वी हैव टू फाइंड आउट डिटरमिनेंट ऑफ a ट्रांसपोज। व्हाट विल बी डिटरमिनेंट ऑफ a ट्रांसपोज, और एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी, कि अगर आप डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A फाइंड करो अदर देन डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A ट्रांसपोज फाइंड करो, दे बोथ विल बी सेम ओनली, दैट इज वन प्रॉपर्टी, सो दैट विल बी 3 ओनली। सो कौन सा ऑप्शन आएगा कि डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3, दैट इज ऑप्शन सी। ओके, तो ये भी ऑप्शन कर लिया। ओके, ये मैट्रिसेस का क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन 6, उसमें किया है ए बी सी, एक डिटरमिनेंट दिया है x प्लस ए, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट हम लोग को यूज करना है, y प्लस 2a एंड z प्लस 3a और 1 2 3, और इसमें दिया है दैट इज इक्वल टू ए बी सी एक्स वाई जेड 1 2 3 प्लस डिटरमिनेंट ऑफ b। our aim is to find out the value of determinant of b, हम लोग को b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो सी ओवर हियर वेरी केयरफुली, फर्स्ट रो आप देखोगे तो हियर भी abc है, हियर भी abc है, फर्स्ट रो तो सेम ही है, इट इज abc। सेकंड रो आप देखोगे तो थोड़ा डिफरेंट है, थर्ड रो देखोगे तो आप सेम ही है, 1 2 3, तो हियर आल्सो 1 2 3। सो सेकंड रो को इन लोग ने डिवाइड किया है, हाउ दे हैव डिवाइडेड द सेकंड रो, यू कैन सी x y z वो फर्स्ट में रखा है, वो फर्स्ट डिटरमिनेंट में x y z रखा है, तो सेकंड में क्या होगा a 2a और 3 है, तो डिटरमिनेंट ऑफ b क्या होगा, फर्स्ट रो तो सेम ही होगा a b c, देयर इज अ प्रॉपर्टी कि यू कैन डिवाइड इट, x y z उन लोग ने यहां पे रखा है, तो सेकंड में क्या होगा a 2a और 3 है, दैट विल बी देयर, लास्ट रो विल बी सेम 1 2 3। तो आपको ये ढूंढना है, आपको ये डिटरमिनेंट ढूंढना है, बट इट इज वेरी इजी सर, यहाँ पे हम लोग डिटरमिनेंट में कॉमन निकाल सकते हैं, इज अ प्रॉपर्टी कि वी कैन टेक आउट कॉमन इन डिटरमिनेंट। तो हियर अगर सेकंड रो में आप क्या निकाल सकते हो, a कॉमन, सो क्या होगा, सॉरी a b c will be the first one, 1 2 3 वो सेकंड होगा, अगेन 1 2 3 वो सेकंड होगा, करेक्ट। सो टू रोज तो सेम ही है, एंड व्हेनेवर टू रोज आर सेम यू नो दैट द डिटरमिनेंट आंसर विल बी 0। सो हम लोग को कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। सो देयरफॉर द आंसर इज सी ऑफ दिस क्वेश्चन ISC, सो इट विल बी 0, करेक्ट ना, सो इट विल बी 0, वेरी सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 7th question, what they have given, sin inverse of x plus sin inverse of y is equal to pi by 2, ये given है, we have to find out dy by dx, अपनों को डेरिवेटिव फाइंड करना है dy by dx। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन ही फाइंड करना पड़ेगा, देन ओनली dy by dx इज पॉसिबल। एक इक्वेशन तो पहले फाइंड कर ले कि रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। नाउ वन थिंग वी नो, प्लीज रिमेंबर, अगर आपको नहीं याद है तो प्लीज रिमेंबर कर लो, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x वो पाई बाई 2 होना चाहिए, प्लीज रिमेंबर दिस, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, बट हियर तो sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y है, तो कैन आई कन्वर्ट एनीवन इनटू cos इनवर्स, sin इनवर्स को हम लोग cos इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं सर, कैसे, मैं आपको, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो वेरी गुड, इफ यू आर नॉट रिमेंबरिंग फॉर्मूला मैं आपको ट्रिक बताता हूं। sin इनवर्स y आप थीटा ले लीजिए, यू टेक sin इनवर्स y एज थीटा, ओके ना, तो y क्या होगा, sin इनवर्स अगर आपको बोलूं कि sin इनवर्स y थीटा होगा, तो अगर वो sin अप्लाई कर दे तो y क्या होगा sin थीटा। तो अब क्या बोले, आप इमेजिनरी एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए, ये एंगल आप थीटा ले लीजिए, और sin थीटा क्या है y, और sin थीटा हम लोग को पता है इट इज ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, सॉरी, सो दिस विल बी y, दिस विल बी 1, आपको पता है ये टेंशन में आपने किया है y by 1, और दिस क्या होगा, दिस विल बी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर। अगर sin थीटा y है तो cos थीटा क्या होगा, अगर आप सोच रहे cos थीटा क्या होगा, cos थीटा विल बी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज cos थीटा विल बी रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर, और अगर हम cos इनवर्स अप्लाई कर दे तो थीटा विल बी व्हाट, cos इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर। सो आप क्या कर सकते हो, sin इनवर्स y को आप लिख सकते हो cos इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर। अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद है तो बहुत ही अच्छा, अदरवाइज ये मेथड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे वापस आता हूँ, sin इनवर्स x, sin इनवर्स y को आप लिख सकते हो cos इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाय 2, और मैंने पहले भी बोला है कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का आंसर क्या होगा, पाई बाय 2, दैट मींस द एंगल शुड बी सेम, करेक्ट ना, sin इनवर्स x प्लस एंगल तो सेम होना चाहिए ना, दैट मींस दिस एंड दिस, दैट मींस दिस और दिस
x इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये अपने को रिलेशन मिल गया, वी गॉट द रिलेशन, बट विल मेक इट इजी, आई विल डू स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर, करेक्ट ना। और इफ यू दिस इज इनफ, ओके, तो उसका कुछ रिलेशन ही निकालना था, हम लोग ने रिलेशन निकाले हैं। चलो अब डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, सो डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर का क्या होगा 2x, डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या होगा 0, डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर क्या होगा 2y dy by dx, और व्हाट इज 0 minus 2y dy by dx, so 2x is equal to minus 2y dy by dx, और आपने को dy by dx तो minus 2y डिवीजन में डाल दो, तो dy by dx is equal to 2x divided by minus 2y, 2 we get cancelled, so the answer is minus x by y। इसका क्या आंसर हो गया minus x by y। तो कौन सा ऑप्शन है सेवेंथ में? सेवेंथ में ऑप्शन minus x by y, that is B ऑप्शन। क्या ऑप्शन है? ऑप्शन बी, ओके। एथ में जाते हैं, एथ क्वेश्चन। ओके, एथ क्वेश्चन इट इज गिवन दैट f of x is equal to 4 minus x square divided by 4x minus x cube। This is given to us 4 minus x square divided by 4x minus x cube। ये हम लोग को एक फंक्शन दिया हुआ है, और यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ये फंक्शन कब कंटिन्यूअस नहीं होगा। नाउ एक्चुअली कंटिन्यूअस में अगर मैं एक वीडियो बनाने जो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू जस्ट शो दैट कि वेदर इट इज कंटिन्यूअस और नॉट, बट एक सिंपल दिस आई कैन टेल यू अ सिंपल लॉजिकल थिंग कि व्हेन फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, जब एक फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा किसी वैल्यू पे, तो वी कैन टेल इट इज नॉट कंटिन्यूअस, ओके। उसका कुछ लिमिट निकाल के कुछ फायदा नहीं, बिकॉज इट इज नॉट डिफाइंड एट दैट पॉइंट, ओके। सो ये फंक्शन एक फ्रैक्शन है, यू कैन सी देयर इज अ फ्रैक्शन, दिस बाय दिस इट इज फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन कब डिफाइन नहीं होगा? जनरली इफ डिनोमिनेटर बिकम्स जीरो, इफ डिनोमिनेटर बिकम जीरो तो इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन। सो हम लोग सिर्फ डिनोमिनेटर में हम लोग अगर कॉन्सेंट्रेट करें, if we just concentrate on denominator logically, so if we take out x common, so what will be 4 minus x square, और 4 minus x square को cancel, please don't cancel this, okay। हम लोग लिमिट्स फाइंड नहीं कर रहे, don't cancel it। 4 minus x square को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 minus x into 2 plus x, okay ना। अगर हम लोग फैक्टराइज करें, so किन वैल्यूज में अगर आपको लगेगा कि it is not possible, हम लोग we cannot find out the define of this function, so it is not continuous, so x0 2 or -2, so three values we can tell like that it is not possible। So what we can say, simple language, it is discontinuous at exactly 3 points, that is C, option C, okay ना। 8th में है option C, okay। अगर आप 9th क्वेश्चन देखोगे, 9th क्वेश्चन is given like this, the degree of the differential equation, so d square y by dx square plus 3 dy by dx the whole square is equal to x square log of d square y by dx square। Now please remember degree का क्या definition है? Degree of the differential equation means के the power of the highest derivative, the highest power of the highest derivative, in a simple language if I tell कि एक highest derivative आप ढूंढ लो और उसका highest power क्या है वो ढूंढ लो, but इसमें एक problem है। What is the problem? That this is not a free from radicals, radicals से ये लोग free नहीं है। That means अगर डेरिवेटिव लॉगरिथम के अंदर आ गया, डेरिवेटिव एंगल में आ गया, और डेरिवेटिव में पावर फ्रैक्शन आ गया, तो वो रेडिकल फ्री नहीं है। फर्स्ट वी हैव टू मेक देम फ्री, बट हियर तो ये भी प्रॉब्लम है कि हम लोग एंटी लॉग भी यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट मेक दिस इक्वेशन फ्री फ्रॉम रेडिकल। सो इसका डिग्री क्या होगा? डिग्री विल बी नॉट डिफाइंड। डिग्री क्या होगा? नॉट डिफाइंड। हम लोग यहाँ गए डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते, ऑप्शन होगा डी। तो ये तो देखने से ही पता चल जाएगा कि डिग्री डिफाइन होगा या नहीं। okay? चलो 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। सो यहाँ ए और बी दो इवेंट्स गिवन है और पी ऑफ ए पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। ओके, पी ऑफ बी 1 नहीं है, तो वो क्या बोल रहे हैं कि फाइंड आउट पी ऑफ ए बार गिवन बी बार, करेक्ट ना? ये यू फाइंड आउट। सो प्लीज रिमेंबर द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ने बहुत परेशान किया है बच्चों को, बट इट्स वेरी सिंपल। प्रोबेबिलिटी में मैं वीडियोस डालूंगा, ऑटोमेटिकली विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। बट मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फार्मूला राइट नाउ ऑफ ए गिवन बी? फार्मूला क्या है? यू हैव टू रिमेंबर द फार्मूला। अगर आपको डेरिवेशन देखना है तो वो अगले वीडियो में आ जाएगा। सो व्हाट इज द फार्मूला? फार्मूला इज पी ऑफ ए दिस इंटरसेक्शन दिस ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश डिवाइडेड बाय पी ऑफ बी डैश। अगर आप ऐसे याद रखना है चाहो तो आप याद रख सकते हो।
P of A dash intersection B dash we have to use. बट आप देखोगे तो ये फॉर्मूला तो अपने ऑप्शन में है ही नहीं. क्यों ऑप्शन में नहीं है? ये सेम फॉर्मूला गिवन है बट इन अ डिफरेंट मैनर. ओके, P of B dash तो है ही ऑप्शन में. और अगर आप देखोगे A dash intersection B dash, नाउ उसका मतलब क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ A dash intersection B dash? A dash मींस के नॉट A आपको नहीं चाहिए. इंटरसेक्शन मींस एंड B भी आपको नहीं चाहिए. A आपको नहीं चाहिए, इवन B नहीं चाहिए, दोनों नहीं चाहिए. बट कोई एक भी आपको चल सकता है और कोई भी ना हो तो भी चल सकता है. बट ये दोनों तो आपको A और B आपके पार्टी में तो नहीं चाहिए. ओके, तो आप क्या करोगे? आप सभी पॉसिबिलिटीज को लोगे. ओके ना, उसका मतलब क्या हुआ कि आपको आइदर A और B और उसमें 1 माइनस कर दोगे, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. बिकॉज आपको A एंड B नहीं चाहिए. नहीं चाहिए मींस आइदर A आना चाहिए और B आना चाहिए, बट बोथ कभी नहीं आना चाहिए. ओके ना, सो देयरफॉर इट इज 1 माइनस P of A union B. So P of A dash intersection B dash क्या होगा? 1 of P of A union B divided by P of B bar. करेक्ट ना? So again रिपीट करता हूँ, A और B नहीं आना चाहिए. That means what? सभी other than A and B, सभी और दूसरे पे चले गए. That is not the problem. Okay. So उसका ऑप्शन होगा ऑप्शन C. C is the correct option. Okay ना? तो ये तो हुए MCQs. Okay. Now 1 marker question में जाते हैं. We'll complete 1 marker today. MCQs clear? Okay. We'll go to 11th question. Write down the smallest equivalent set of set A is equal to ABC. Smallest equivalence. Now equivalence means what? कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्री होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए. ओके, सो अगर हम रिफ्लेक्सिव देखेंगे, एक रिलेशन में बना लो, तो सपोज AA BB CC. अगर आप ये रिलेशन देखोगे, प्लीज सी दिस रिलेशन वेरी केयरफुली. ये रिफ्लेक्सिव हुआ, यस, बिकॉज A is related to A, B related to B, C related to C, सभी अपने आप से रिलेटेड है. नाउ सिमेट्री कब आप चेक करोगे? प्लीज टेक केयर. सिमेट्री कब आप चेक करोगे? इफ A is related to B, then B should be related to A. बट हियर तो मैंने लिखा ही नहीं है कि A, B है. अगर मैं लिखूं A, B, then I have to write B, A also. अगर मैं सिर्फ A, B लिखूं but B, A ना लिखो, then it is not reflexive. बट मैंने तो वो लिखा ही नहीं है. That means automatically it is symmetry. अब लोग चेक ही कब करोगे? कि जब आप A related to B होगा, then B related to A. अगर ये ऑप्शन है ही नहीं तो you will consider that it is symmetry. Similarly, transitivity में क्या होगा? If A related to B, B related to C, then you will check whether A is related to C or not. अगर आप ऑप्शन ही नहीं डालोगे तो ऑटोमेटिकली वो ट्रांजिटिव भी हो जाएगा. So this is the smallest relation which is reflexive also. रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव में तो सब होना चाहिए. A related to A, B related to B, C related to C. सिमेट्री है, यस है, बिकॉज सर A related to B ही नहीं है, तो दैट मींस देयर इज नो पॉइंट ऑफ चेकिंग B related to A. और सिमिलरली if A related to B, B related to C, ट्रांजिटिविटी का ऑप्शन ही नहीं है, तो देन देयर इज व्हाई टू चेक दैट इट इज ट्रांजिटिव और नॉट. यू विल अज्यूम दैट इट इज ट्रांजिटिविटी. ओके, सो ये हो गया 11th क्वेश्चन. विल गो फॉर द 12th वन. Okay, so it is given that 3, 5, 7, 9 एक मैट्रिक्स है, उसको दो it is divided into two parts, x and y. Okay, in such a way that x is skew symmetry, y is symmetry, then find out the determinant of x. Okay, तो x क्या बोला उन लोग ने? skew symmetry. तो please take care, skew symmetry किसी भी मैट्रिक्स को, अगर एक मैट्रिक्स को आपको दो भाग में डिवाइड करना है, one is symmetry, other one is skew symmetry, तो सिमेट्री y सिमेट्री है, तो सिमेट्री चाहिए तो हाफ इंटू A प्लस A ट्रांसपोज. ये करोगे तो आपको सिमेट्री मैट्रिक्स मिल जाएगा 100%. और जब y ढूंढोगे वो सिमेट्री होगा. और हाफ इंटू A माइनस A ट्रांसपोज करोगे तो ये जो x मिलेगा वो स्क्यू सिमेट्री मिलेगा. ओके, सो हम लोग को तो ये चाहिए हाफ इंटू A माइनस A ट्रांसपोज. तो पहले तो चलो A माइनस A ट्रांसपोज ढूंढते हैं. व्हाट इज A? सर A इज 3, 5, 7, 9 माइनस A ट्रांसपोज. A ट्रांसपोज क्या होगा? 3, 7, 5, 9. ओके, लेट अस सबट्रैक्ट दिस. तो क्या होगा? 0 minus 2 2 0. तो ये तो हो गया A minus A ट्रांसपोज. बट x क्या होगा? x will be half of A minus A ट्रांसपोज. इसका हाफ मींस व्हाट? सभी को डिवाइड बाय 2 कर दो, सभी को हाफ कर दो, तो इट विल बी 0 minus 1 1 0. तो ये तो हो गया मैट्रिक्स x. ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया? x. और ये 100% स्क्यू सिमेट्री. स्क्यू सिमेट्री मींस अगर उसका आप ट्रांसपोज करके नेगेटिव करोगे तो वो सेम आंसर आ जाएगा. तो x इज स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स. नाउ अपने को क्या फाइंड करना है? डिटरमिनेंट. वी हैव टू फाइंड आउट डिटरमिनेंट ऑफ x. तो डिटरमिनेंट तो वेरी इजी. 0 into 0 is 0.
put a minus sign, then come up, then always come up. 1 into minus 1 is minus 1. So अगर आप करोगे तो what is the answer? Answer is plus 1. So what is the determinant of x? Determinant of x is very simple, it is plus 1. Correct? चलो 13 क्वेश्चन में जाते हैं. अगर आपको कभी भी सॉल्यूशन की जरूरत हो, या पॉज कर लो, you can get the solution very much well. चलो, so 13 क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ log 2x. अगर आपको इंटीग्रेशन ऑफ log 2x करना है तो प्लीज रिमेंबर, अगर आपको कभी भी लॉगरिथम का इंटीग्रेशन करना है तो एग्जैक्टली वी डोंट हैव एनी फार्मूला फॉर फाइंडिंग आउट इंटीग्रेशन ऑफ लॉगरिथम, बट हम लोग फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं हम लोग? लॉगरिथम को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं. सो क्या आता है? u इंटू वी. ओके ना, क्या होगा? u इंटू वी. अगर आपको करेंगे तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर सकते हैं. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मींस फर्स्ट एज इट इज log 2x एज इट इज रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 करेंगे, सेकंड वन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ log 2x. नाउ प्लीज टेक केयर, डेरिवेटिव ऑफ log 2x कैसे करना है? 1 by 2x. बट देन आपको चेन रूल याद रखना है कि डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ 1 by 2x करते हैं तो मल्टीप्लाई विद द डेरिवेटिव ऑफ 2x, दैट इज हाउ मच? 2 इनटू अगेन इंटीग्रेशन ऑफ v. ओके, तो क्या करना है? प्रोडक्ट दिस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, I multiplied by chain rule into integration of second. So what is that? Integration of 1, that is x. So x log 2x minus, अगर here 2 2 cancel हो जाएगा तो integration of what? 1 upon x into integration of this is x. और ये भी cancel हो गया तो x हो गया, तो integration of 1 ही बाकी रह गया, तो x log 2x minus integration of 1 is x plus c. ओके, ये अपना आंसर है, ये अपना आंसर है. और वो क्या आंसर दे रहे हैं? वो भी एक आंसर दे रहे हैं. ये तो अपना आंसर है, वो आंसर दे रहे हैं x log 2x. उन लोग का आंसर है x log 2x माइनस k प्लस c. अगर हम लोग आंसर मैच करें, ये मेरा आंसर है, ये उन लोग का आंसर है, अगर हम लोग आंसर मैच करें तो वैल्यू ऑफ k क्या होगा? द वैल्यू ऑफ k विल बी, यू कैन सी दैट k विल बी इक्वल टू x. सो वैल्यू ऑफ k क्या होगा? x होगा. तो सिंपली यू हैव टू राइट डाउन k इज इक्वल टू x. क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं. 14.1. क्या गिवन है? 50 tickets are given in the box. Please take care. 50 tickets are given in the box. Number है 00, 01, 02 till there 49. 49 tickets है. Okay ना? Sorry, 50 tickets है starting with 00. Okay. Now one ticket is drawn randomly from the box. The probability of having the ticket product of the digit is 7 is given. Then find out the probability of the sum of the digit should be 8. Very simple. Find the probability of ticket having the probability having the product of the digit 7 given that the sum is 8. Now please take care. Now उसमें क्या दिया है कि हम लोग को फाइंड आउट करना है probability that the product should be 7. हम लोग को ये चाहिए कि product should be 7, but the sum of the digit given that the sum of the digit is 8. इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको दिखाता हूँ. फर्स्ट अपना मेन प्रोबेबिलिटी करते हैं कि प्रोडक्ट शुड बी 7. ओके, और गिवन कंडीशन क्या गिवन है? वन कंडीशन इज आल्सो गिवन. व्हाट इज द कंडीशन? दैट द सम ऑफ द डिजिट शुड बी 8. सो अगर हम इवेंट ए देखेंगे तो प्रोडक्ट शुड बी 7. तो ऐसा तो एक ही नंबर है 17, इसका प्रोडक्ट 7 होगा 1 into 7. और अगर हम इवेंट बी देखेंगे, एडिशन शुड बी 8, तो 0 8 होगा, 1 7 होगा, देन ऑब्वियसली 2 6 होगा, 26 होगा, देन 35 होगा, 53 तो नहीं, 44 हो सकता है. ओके ना? देन बस इतना ही हो सकता है क्योंकि नंबर टिल 40 दिस है. तो क्या हुआ, अपने पास 5 ऑप्शंस है, 1 2 3 4 5. उसमें से कितने ऑप्शन हम लोग को प्रोडक्ट 7 चाहिए? ये अपना कंडीशन है. तो फर्स्ट वी हैव टू फुलफिल आवर कंडीशन. कंडीशन में क्या है? 5 ऑप्शन है अपने पास कि ये 5 एडिशन 8 बनाते हैं. वी वांट मल्टीप्लिकेशन शुड बी 7, सो इट विल बी 1 upon 5. क्लियर ना? वन ऑप्शन वी नीड. दिस इज अवर फेवरेबल आउटकम, दिस इज अवर टोटल आउटकम. अपना टोटल आउटकम 50 नहीं है बिकॉज कंडीशन दिया हुआ ना कि जितना भी टिकट हम निकालेंगे उसका सम तो 8 होना चाहिए. तो दिस इज द सम 8 और उसमें से हम लोग को प्रोडक्ट 17 चाहिए. तो इन शॉर्ट वी नीड p of a given b. व्हाट इज p of a given b? मैं जो समझा रहा था अपने आपको थोड़ी देर पहले, a intersection b divided by p of b. a intersection b means what? इनका इंटरसेक्शन क्या है? only 1 17. so 1 by 50 divided by probability of a intersection b, टोटल ही ले रहा हूं मैं, और probability of b 1 2 3 4 5 5 by 50. अगर हम लोग 50 50 कैंसिल कर लेंगे, so 1 by 5 will be the answer. So 1 out of 5 option you have. So this is the answer of 14th question. Okay. Or last one, 15th one.
15 क्वेश्चन किया है कि A speaks truth 60% in the cases while B speaks truth in 90% of cases. So that means what is the probability that A will speak truth? A कब तक सच बोलेगा? 60%, so 60/100. और B A कब झूठ बोलेगा? Okay, when he will tell lie. Okay, contradiction. So 40/100. Okay ना, because you know that the addition should be 1. That means P of A complement is 1 minus P of A. Okay, उसका 1 minus P of A होगा. When B will tell truth, B कब truth बोलेगा? 90 times out of 100, 90%. तो B झूठ कब बोलेगा? When he will speak lie, 10/100. तो ये तो डेटा अपने पास है कि A का प्रोबेबिलिटी सच बोलने का, B का प्रोबेबिलिटी सच बोलने का और दोनों का झूठ बोलने का. In what percentage फाइंड करना है, प्लीज टेक केयर. In what percentage of cases they are likely contradicting each other in the same in the stating the same fact. वो contradict कर रहे हैं एक दूसरे को. A और B क्या कर रहे हैं? Contradict कर रहे हैं. That means अगर A सच बोल रहा है तो B झूठ बोल रहा है. If A is speaking truth and B is speaking lie, or means addition. Please take care. And मैं जब भी बोलूँ तो मल्टीप्लिकेशन करना, मैं प्रोबेबिलिटी में सब समझा दूंगा. और बोलूँ तो यू हैव टू ऐड दैट. एंड सॉरी, A सच बोलेगा, B झूठ बोलेगा, और A झूठ बोलेगा एंड B सच बोलेगा. So that means what? P of A into P of B dash plus P of A dash into P of B. So you have to just substitute the values. Nothing कुछ नहीं करना है, just substitute the values. P of A is what? 60/100. अगर A सच बोलेगा तो B झूठ बोलेगा, that is 10/100. ओके, मैंने 100 ही रखा है. और A dash अगर A झूठ बोलेगा 40/100, तो उसका प्रोबेबिलिटी है, तो B सच बोलेगा 90/100. अगर मैं थोड़ा कैलकुलेशन करूँ तो इट विल बी 600/1000. यू कैन कैंसिल आउट, नो प्रॉब्लम, बट मैं आखिर में कैंसिल करूँगा. एंड दिस विल बी 10,000. वन मोर जीरो, here also 10,000. 2 zeros, 10,000. तो अगर मैं ऐड करूँ तो इट विल बी 4,200 डिवाइडेड बाय 10,000. ओके, क्लियर. मैं 2 zeros निकाल देता हूँ. तो 42/100, दैट मींस व्हाट? 42%. दैट मींस अगर वो कितने परसेंटेज कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं दोनों एक दूसरे से, 42%. तो ये तो हुआ आपका 1 मार्कर क्वेश्चन. ओके, ये 1 मार्कर क्वेश्चंस वेरी मच इजी थे. ओनली द टेक केयर कि 2 और 3 क्वेश्चन ऐसे थे कि यू हैव टू थिंक लिटिल बिट, हट के थोड़ा सोचना पड़ेगा. यू हैव टू थिंक लिटिल बिट इन अ डिफरेंट मैनर एंड देन यू विल गेट द आंसर वेरी मच इजीली. अगर आपको आंसर, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आंसर का ऑटोमेटिकली आ जाएगा. सो इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे 2 मार्कर क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन ए, जस्ट 2 मार्कर क्वेश्चन. उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 4 मार्कर क्वेश्चन एंड देन 6 मार्कर क्वेश्चन. और सिमिलरली विल गो फॉर सेक्शन बी एंड एज वेल एज सी. सो स्टे ट्यून. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे. बाय बाय.